हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। जो आज हम पढ़ेंगे मालिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए वगैरह के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने। 12th के बाद के जो मेडिकल फील्ड में कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं लाइफ साइंसेज में, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, देन लेट्स बिगिन। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि डीएनए है। ठीक है, genetic material is that substance which controls the formation and expression of traits in an organism and can replicate and pass on from a cell to its daughter cell and from one generation to the next. The most conclusive evidences in support of DNA as the genetic material came from the following experiment. पहला है ग्रिफिथ वाला। ठीक है, ग्रिफिथ conducted a series of experiment on bacteria Streptococcus pneumoniae and concluded that there was some factor in heat killed virulent bacterial strain that transformed live non-virulent into virulent strain. This must be due to the transfer of the genetic material. ठीक है, एक ये एक्सपेरिमेंट हो गया। दैन सेकंड इज in 1944 Avery, McCarthy and McLeod fractioned the killed S-type bacteria into three components: DNA, carbohydrates and protein. They also discovered that protein digesting enzymes, that is proteases, and RNA digesting enzyme, that is RNases, did not affect the transformation, so the transforming substances was not a protein or RNA. ठीक है, digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. Thus they concluded that the DNA is the hereditary material. ठीक है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। थर्ड करा था हर्शी एंड चेज ने। ठीक है, हर्शी एंड चेज वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस. दे इनकॉर्पोरेटेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फास्फोरस P35 इनटू फेज डीएनए, मीन्स बैक्टीरियोफेज डीएनए, इन अ फेज कल्चर. ठीक है, एंड सल्फर S35 into proteins in a separate phage culture. These phage types were used independently to infect the bacterium Escherichia coli. ठीक है ना, bacteria which were infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the genetic material that passed from the virus to the bacteria. ठीक है, ये तीन एक्सपेरिमेंट याद रखने। नेक्स्ट इज डीएनए के बारे में देखते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, व्हाट इट इज। ठीक है, डीएनए इज द मैक्रोमॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू complementary strands of deoxyribonucleotides that run anti-parallelly and are held together by hydrogen bonds between their opposite nitrogen bases. It means DNA. ठीक है, it consists of 4 types of basic units called nucleotides. Each nucleotide is made up of pentose sugar, which is deoxyribose type, then a phosphate group and a nitrogenous base. A subunit composed of only sugar and nitrogen base known as nucleoside. ठीक है, अगर phosphate ना हो इसमें। देन आप देखते हैं अर्गिन चेरगाफ ने क्या बोला, Erwin Chergaff formulated important generalizations about DNA structure. These generalizations are called Chergaff's rules in his honor. These are summarized as, ये Chergaff's rules को क्या क्या हैं वो देखते हैं। हाँ, फर्स्ट वन इज के the purines and pyrimidines are always in equal amounts, that is A plus G is equal to T plus C, means adenine plus guanine is equal to thymine plus cytosine. ठीक है, number second is the amount of adenine is always equal to that of thymine, and the amount of guanine is always equal to that of cytosine, that is A is equal to T and G is equal to C. However, the amount of adenine plus thymine is not necessarily equal to guanine plus cytosine. ठीक है, नंबर 3, the base ratio A plus T by G plus C may vary from one species to another but is constant for a given species. ठीक है, ये रेशो। नेक्स्ट इज
हाँ, डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स कैसे होती है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकिंग, ठीक है ना। डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, ठीक है। हाँ, हिस्टोन्स में ये लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा होते हैं। द यूनिट ऑफ कंपैक्शन इज न्यूक्लियोसोम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, H1, then H2A, H2B, H3 and H4, ठीक है। 4 of them means H2A, H2B, H3 and H4 occur in pair to produce histone octamer called new body or core of nucleosome, ठीक है। DNA connecting to adjacent nucleosomes is called interbead or linker DNA, ठीक है। It bears H1 histone protein which is also called plugging protein and act as marker protein, ठीक है। then nucleosome and linker DNA together constitute chromosome, ठीक है। nucleosomes constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin. Some regions of chromatin are loosely packed and stain tight and are referred to as euchromatin. The euchromatin that is more densely packed and stains dark is called as heterochromatin. Euchromatin is transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली। नेक्स्ट देखते हैं हम राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के बारे में। राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, ठीक है। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन सम वायरसेस, दैट इज रेट्रोवायरसेस। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। इसमें थायमिन नहीं है, यूरासिल है उसके बाद, ठीक है। आरएनए में द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, द पेंटोज शुगर इन आरएनए इज राइबोज शुगर while it is deoxyribose sugar in DNA. Number 1. Number 2, थायमिन in DNA is replaced by uracil in RNA, ठीक है। कि जो DNA में थायमिन होता है वो उसकी जगह RNA में यूरासिल आ जाता है। देन all other nitrogenous bases are same in both RNA and DNA. Next, on the basis of molecular size and function, 3 main forms of non-genetic RNA are found. These are mRNA, tRNA and rRNA, ठीक है। on the basis of size and functions, 3 non-genetic RNA ये, ठीक है ना। mRNA constitute about 3.5% of cellular RNA, tRNA is about 15% and rRNA is about 80%, सबसे ज़्यादा rRNA, ठीक है। पहला हम देख लेते हैं mRNA, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, mRNA, ठीक है। हाँ, ये दिस mRNA इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशनल RNA और टेम्पलेट RNA, ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशनल RNA या टेम्पलेट RNA भी बोलते हैं mRNA को, ठीक है। सो दिस mRNA इज अ मॉलिक्यूल ऑफ RNA दैट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ जीन एंड देन ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स in order to manufacture protein. When a particular gene codes for mRNA strand, it is said to be monocistronic or monogenic, for example in eukaryotes. Then, when several genes, that is cistrons, are transcribed into a single mRNA molecule, it is described as polycistronic or polygenic, for example in prokaryotes, ठीक है। mRNA हो गया। अब देखते हैं rRNA, सॉरी, अब हम देखते हैं tRNA, ठीक है ना। tRNA which is also called transfer RNA, ठीक है। tRNA means transfer RNA, ठीक है। This tRNA or transfer RNA is also known as soluble RNA, acceptor RNA और adapter RNA, ये भी इस tRNA के नाम है, ठीक है। soluble RNA या acceptor RNA और adapter RNA, ये सारे tRNA को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, then Holly in 1965 proposed two-dimensional structure of tRNA which consists of a binding site which lies opposite to anticodon site, ठीक है ना। हाँ, tRNA molecules have unpaired CCA-OH sequence at the 3 end, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया पहला AA साइट। उसके बाद tRNA में होता है T साई C लूप, T साई ये सिंबल T साई C लूप, ठीक है, विच कंटेन स्यूडो यूरिडीन, ठीक है, द साइट फॉर अटैचिंग टू राइबोसोम्स, ठीक है। हाँ, तो ये
टी साई सी लूप के बारे में पढ़ा। देन DHU लूप ही होता है tRNA में, विच कंटेन्स डाई हाइड्रो यूरिडीन विच इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर अमाइनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है, DHU लूप। उसके बाद tRNA में होता है एक्स्ट्रा आर्म विच इज़ अ वेरिएबल साइट आर लूप विच लाइज बिटवीन टी साई सी लूप एंड एंटीकोडॉन। उसके बाद tRNA में होता है एंटीकोडॉन लूप, ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग टू द कोडॉन ऑफ mRNA। तो tRNA में आपने देखा AA बाइंडिंग साइट है, T साई सी लूप है, DHU लूप है, ठीक है, देन एक्स्ट्रा आर्म है और एंटीकोडॉन लूप है। tRNA हो गया। उसके बाद देखते हैं राइबोसोमल RNA, ठीक है, राइबोसोमल rRNA, ठीक है ना। दिस राइबोसोमल rRNA इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स, द प्रोटीन सिंथेटिक फैक्टरीज इन द सेल, ठीक है। राइबोसोम क्या प्रोटीन सिंथेटिक फैक्टरीज है सेल की, तो उस राइबोसोम का पार्ट है RNA। दिस राइबोसोमल RNA इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस में बनता है। Then, depending upon the sedimentation coefficient, eukaryotic ribosomes contain different rRNA molecules, that is 28S, 5.8S, and 5S in eukaryotes, and then 23S and 5S in prokaryotes. ठीक है, they occur in larger subunit of ribosomes, while 18S in eukaryotes and 16S in prokaryotes is found in smaller subunit of ribosome. राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होता है ना, तो स्मॉलर सब यूनिट में जो है जो यूकैरियोट्स होता है उसके लार्जर सब यूनिट में 18S होता है और प्रोकैरियोट के लार्जर स्मॉलर यूनिट में 16S होता है, ठीक है ना। और अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें, हाँ, तो ये 18S यूकैरियोट के स्मॉलर सब यूनिट में, 16S प्रोकैरियोट के स्मॉलर यूनिट्स में, और इनके लार्जर यूनिट में ये होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं DNA वर्सेस RNA के बारे में थोड़ा, ठीक है। DNA वर्सेस RNA के बारे में थोड़ा देखते हैं। The genetic material should be stable enough not to change with different stages of the life cycle, age, or with change in physiology of the organism. DNA being complementary double stranded, if separated by heating, come together when appropriate conditions are provided. On the other hand, 2 OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group, makes RNA labile and easily degradable, ठीक है, ये जो OH ग्रुप होता है 2 कार्बन एटम है। Then RNA is also now known to be catalytic, hence reactive. कैटालिटिक है तो रिएक्टिव है, ठीक है। Therefore DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA, ठीक है। The presence of thymine at the place of uracil in DNA also confers additional stability to DNA. Both DNA and RNA are able to mutate, ठीक है। In fact, RNA being unstable mutates at the faster rate, ठीक है। Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster, ठीक है, क्योंकि RNA जल्दी जो है म्यूटेट करता है। वायरसेस में RNA होता है जीनोम, इसलिए वो थोड़ा जल्दी से म्यूटेट कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे कोरोना वायरस के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैसे म्यूटेट हुआ कोरोना वायरस, ठीक है, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं DNA रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है ना। The unique process of making an identical copy of a double-stranded DNA using existing DNA as a template for the synthesis of new DNA strand is called DNA replication. नेक्स्ट हम देखते हैं मसेल्सन एंड स्टाल इन 1958, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। मसेल्सन एंड स्टाल इन 1958 प्रूव्ड दैट DNA replicates by semi conservative method by experimenting on E. coli. उन्होंने E. coli पे एक्सपेरिमेंट करा एंड यूज द हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन N15, ठीक है। हाँ, ये आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है N15 नाइट्रोजन का, ठीक है। नॉर्मल N14 होता है। They grew bacterial cells having DNA labeled with N15 in N14 medium and N14 में नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में जो है नाइट्रोजन 15 भी जो है इन्होंने लेबल करा DNA का।
and found that F1 generations has DNA density intermediate between the two. Thus, the newly synthesized DNA possesses one strand contributed by the parent DNA and the other newly synthesized, and the other is newly synthesized. ठीक है. Then ये मसल्सन स्टाल के उसमें उन्होंने करा प्रूव. ठीक है. देन replication of DNA is energetically highly expensive. It requires a set of enzymes, mainly DNA dependent DNA polymerase. These enzymes catalyzed polymerization of a larger number of nucleotides very accurately in a very short time. Replication requires abundant energy that comes from breakdown of triphosphates of deoxyribonucleotides. Enzyme helicase acts over the ORI site and unzips, means unwinds, the two strands of DNA. The separated strands are stabilized by means of single-stranded binding proteins SSBPs. ठीक है. Unwinding tension in the uncoiled part by forming more supercoils. ठीक है. Tension is released by enzymes topoisomerases. ठीक है. they topoisomerases जो है ना, हाँ, they cause nicking of one strand of DNA for removing coils and resealing the same. Whole of the DNA does not open in one stretch due to very high energy requirement, but the point of separation proceeds slowly towards both the directions. It gives the appearance of Y-shaped structure called replication fork. A small strand of RNA called RNA primer is synthesized at the 5' end of the new DNA strand. It is essential for initiation of new DNA chains as it is required by DNA polymerase to add nucleotides. DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction, that is 5 to 3. Consequently, on one strand, that is the template with polarity 3 to 5, ठीक है, the separation is continuous, while on the other strand, that is the template with polarity 5 to 3 prime, it is discontinuous. ठीक है. जो 3 से 5 होता है वो जो है कंटिन्यूस है, और जो 5 से 3 वो डिसकंटिन्यूस है. ठीक है. डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन अकर्स बिकॉज ओनली अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ टेम्पलेट एक्सपोजेस एट अ टाइम. ठीक है. द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज. ठीक है. ये हो गया. अब हम पढ़ेंगे, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया. अब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे. ठीक है ना. ट्रांसक्रिप्शन जिसमें एमआरएनए बनता है. ठीक है. एमआरएनए के बाद फिर कैसे प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के थ्रू. ठीक है. तो ये हम देखेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. ठीक है ना. ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डीएनए स्ट्रैंड इनटू अ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, दैट इज एमआरएनए. ठीक है. Transcription requires an enzyme RNA polymerase. The entire or complete enzyme, that is holoenzyme, consists of a core enzyme and a sigma factor. ठीक है. The sigma factor recognizes the start signal on DNA and directs the binding of the enzyme to the promoter region. It thus enhances the specificity of transcription. ठीक है. Then eukaryotes have 3 RNA polymerases. RNA polymerase first is located in the nucleus and transcribes for rRNAs, means 28S, 18S and 5.8S. Then RNA polymerase second is localized to the nucleoplasm and used for hnRNA, mRNA and RNA RNA polymerase second localized to the nucleus, possibly the nucleoplasm interface, and transcribes for tRNA, 5S tRNA, then 5S rRNA, then snRNAs. ठीक है. Then prokaryotes have only one RNA polymerase which synthesizes all types of RNAs. RNA polymerase of Escherichia coli have 5 polypeptide chains. ठीक है. उसमें आ गया बीटा वाली चेन विच हाँ बाइंडिंग विद सिग्मा फैक्टर. हाँ,
देन एक और जो है बीटा वाली चेन, ये बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए, ठीक, कैटालिटिक। देन अल्फा वाली, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर सीक्वेंस। देन टू चेन्स ऑफ, सॉरी ये सिग्मा वाले, ठीक है ना, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर सीक्वेंस एंड टू चेन्स ऑफ अल्फा फॉर स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है ना। Next is the segment of DNA. The segment of the DNA that takes part in transcription is called transcription unit. ठीक है, it has three components: a promoter, the structural gene and a terminator. ठीक है, तीन component होते हैं. Besides a promoter, eukaryotes also require an enhancer. ठीक है. Then promoter has different parts for attachment to various transcription factors. In many cases the promoter has AT, means adenine thymine. The promoter has AT rich region called टाटा बॉक्स, ठीक है, कि ज़्यादातर केसेस में जो प्रोमोटर है उसमें एडेनिन थायमिन रिच रीजन होते हैं जिसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, ठीक है. Then structural gene is a component of that strand of DNA which has 3 to 5 polarity, ठीक है ना. हाँ, जिसमें वो कंटिन्यूस रहता है ऊपर, ठीक है ना. देन दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड और मास्टर स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है ना. मास्टर स्ट्रैंड ये भी इंपॉर्टेंट है, या एंटीसेंस, ठीक है, कि स्ट्रक्चरल जीन वो कंपोनेंट होता है डीएनए स्ट्रैंड का जिसमें 3 to 5 पोलैरिटी होती है, और इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड या मास्टर स्ट्रैंड या एंटीसेंस या माइनस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है. द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ पोलैरिटी 5 to 3 इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. हाँ, दिस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 to 3 वाला विच डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज आल्सो कॉल्ड सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड और प्लस स्ट्रैंड, ठीक है. तो ये जो 5 to 3 जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता है इसको सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड या प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं. बिकॉज जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रैंड इज सिमिलर टू द जेनेटिक कोड बेस्ड ऑन mRNA एक्सेप्ट दैट यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, ठीक है ना. हाँ, अ टर्मिनेटर फैक्टर कॉल्ड रो फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंपल उल्टा पी, ठीक है ना, रो इसको बोलते हैं. क्या टर्मिनेटर फैक्टर कॉल्ड रो फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. रो फैक्टर की जरूरत थी. ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, रो फैक्टर ने टर्मिनेशन कर दिया. आप देखते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अकर विद इन द न्यूक्लियस एंड mRNA मूव्स आउट of the nucleus into the cytoplasm for translation. The mRNA is processed from the primary RNA transcript, a process called maturation. Initially at the 5' end, a cap consisting of 7-methyl guanosine or 7-mg and a tail of poly A at the 3' end are added. The cap is chemically modified molecule of guanosine triphosphate, means GTP, ठीक है. The primary mRNA transcript is longer and localized into the nucleus, where it is also called heterogeneous nuclear RNA or hnRNA, ठीक है, और pre-mRNA, ठीक है. The primary mRNAs are made up of two types of segments, non-coding introns and the coding exons, ठीक है, coding exons, non-coding introns. Then the introns are removed by a process called RNA splicing, ठीक है. The enzyme ligase joins two adjacent exons to produce mature mRNA, ठीक है, ligase enzyme. तो ये है कुछ मतलब कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिखाया हुआ, ठीक है ना. तो हाँ, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है ना. ये तो ये आप देख सकते हो, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है कैसे अनबाइंड कर रही है. ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है ना, और ये कैसे ये अनबाइंडिंग स्ट्रैंड के अनबाइंडिंग हो रही है, ठीक है, अनबाइंडिंग स्ट्रैंड ये. और हाँ, तो बाकी ये यहाँ पे देखो लास्ट में टर्मिनेशन सीक्वेंस है, ठीक है. तो
यहाँ पे आप डिटेल में इसको देख सकते हो कि पहले प्रोमोटर रीजन है, ठीक है ना। तो फिर उसके प्रोमोटर रीजन के बाद आ गया ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाँ, उसके बाद ये आप देख सकते हो कि लीडर सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये है इनिशिएशन कोडान, ठीक है। हाँ, तो ये जो है लीडर सीक्वेंस है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये इसको एक्सपेंड करा हुआ है। और ये इनिशिएशन कोडान है, फिर ये लास्ट में टर्मिनेशन कोडान आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। हाँ, इस पॉइंट नंबर 1 वाले के बारे में देख लेते हैं कि ईच जीन कंटेन्स अ स्पेसिफिक प्रोमोटर रीजन एंड अ लीडर सीक्वेंस फॉर गाइडिंग द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। प्रोमोटर और लीडर सीक्वेंस, ठीक है। इसमें ये प्रोमोटर है और ये लीडर सीक्वेंस है फॉर गाइडिंग द for guiding the beginning of transcription. This is followed by the region of a gene that codes for a polypeptides and end with a series of terminal sequences that stop translation, ठीक है। इसके बाद एक रीजन आ जाता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन करता है, मतलब कि, ठीक है। लीडर सीक्वेंस के बाद ये पॉलीपेप्टाइड ये रीजन सिंथेसाइज करता है, फिर ये टर्मिनेशन होता है, ठीक है। हाँ, इस वाले के बारे में ये, तो ये जो दूसरे वाला था, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं कि डीएनए इज अनवाउंड एट द प्रोमोटर बाय आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अनवाइंडिंग हुई डीएनए कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज ये अनवाइंडिंग करेगा डीएनए की, ठीक है ना। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉपीड बाय द एमआरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है ना, हाँ ये वाला, तो सिर्फ वो कॉपी होगा आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, ठीक है ना। दिस स्ट्रैंड रन्स इन 3 to 5 डायरेक्शन, ये देखो 3 to 5 डायरेक्शन में चल रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऐसे ऐसे चल रही है। पहले यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थे, तो कैसे कैसे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है अर्ली एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये नया एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। हाँ, ये इधर से निकलता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड पूल है, ठीक है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पड़े हैं, जो कि ये ट्रांसक्रिप्शन के दौरान में यहाँ पे जुड़ते जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन में, और ये एमआरएनए बनता जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका थोड़ा देख लेते हैं कि एज द आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अराउंड दिस स्ट्रैंड इट एड्स कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स एज डिक्टेटेड बाय द डीएनए टेम्पलेट फॉर्मिंग द सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए दैट रीड्स इन 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है 5 to 3 डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रैंड था 3 to 5, इसका अपोजिट 5 to 3 बन रही है, ठीक है, एमआरएनए। उसके बाद नेक्स्ट वाले में ये आप देख सकते हो कि ये पूरा देखो कितना लेट अर्ली एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो अभी बन रहा है छोटा सा, देखो बाद में लेट एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट कितना बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब ये वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत हो रही थी, यहाँ पे इलांगेशन हो रहा है, ये कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ रहा और बना रहा है, ठीक है। तो हाँ, द पॉलीमरेज कंटिन्यूज ट्रांसक्राइबिंग अंटिल इट रीचेज अ टर्मिनेशन साइट एंड द एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज्ड फॉर ट्रांसलेशन। कब? जब टर्मिनेशन साइट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो टर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाया हमने, तो हमारे ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो है वो हो गया फिनिश। अब हम थोड़ा जेनेटिक कोड का देखेंगे, फिर ये ट्रांसलेशन शुरू करेंगे कैसे प्रोटीन बनेगी, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। the genetic representation of codon by which the information in RNA is decoded in a polypeptide chain is called genetic code, ठीक है। is called genetic code. It is the relationship of amino acid sequences in a polypeptide chain and the base sequences of DNA, ठीक है। Now genetic code has the following characteristics. Number 1, कि genetic code is universal, that is it is found in all living organisms, ठीक है। Number 2, for a particular amino acid more than one codon can be used. This is called degeneracy of codon, ठीक है, कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान हो सकते हैं, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडान। नंबर 3, जेनेटिक कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, मीन्स वन लेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 2 different कोडान्स, ठीक है। यस, नॉन ओवरलैपिंग होती है।
Next is a particular codon will always code for same amino acid, that is code is non-ambiguous, ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, ये कोडान पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए ही जाएगा। बट GUG, लेकिन जो GUG कोड है व्हेन प्रेजेंट इन अ बिगिनिंग कोड्स फॉर मिथ्योनाइन एंड व्हेन प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट पोजीशन इट कोड्स फॉर वैलेन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है ये GUG वाली, ठीक है, कि जो GUG है जब ये बिगिनिंग में अगर पाया जाए तब ये मिथ्योनाइन के लिए होता है, ठीक है, स्टार्टिंग कोडान बनता है, लेकिन जब ये GUG इंटरमीडिएट लोकेशन पे है तब ये वैलाइन के लिए होता है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये ध्यान रखना GUG का, ठीक है ना। देन द कोडान विच इनिशिएट्स द प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडान। सो दिस इनिशिएशन कोडान इज मोस्टली AUG विच कोड फॉर मिथ्योनाइन, ठीक है, तो ये इनिशिएशन कोडान जो है ये AUG है जो कि मिथ्योनाइन के लिए होता है, ठीक है। GUG अगर स्टार्टिंग में है वो मिथ्योनाइन के लिए लगता है, लेकिन हाँ इनिशिएशन कोडान ये AUG है, ये भी मिथ्योनाइन के लिए। नेक्स्ट इज द कोडान्स विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडान आर टर्मिनेटर कोडान। These codons are AUG, also called AMBER. Sorry, these terminator codons are UAG, which is called AMBER, then UAA, which is called OCHR, and UGA, which is called OPAL. All these three are nonsense codons or terminator codons, ठीक है। UAG युवा, UAA युवा, UGA युगा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, ट्रिक के थ्रू, युवाग युवा युगा, ठीक है ना। युवाग जो है ये आ गया अंबर, युवा ओकर एंड युगा ओपल। अब हम वोबल हाइपोथेसिस देखते हैं, ठीक है। वोबल हाइपोथेसिस क्या? Vobel hypothesis was given by F.H.C. Crick in 1965. According to this, third nitrogenous base of codon binds loosely with anticodon, and codon is mainly specified by first two bases. Hence, the same tRNA can recognize more than one codon differing only at third position. ठीक है, यह था Vobel hypothesis, very important. Now, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। हाँ, ट्रांसलेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच द ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस ऑफ एन mRNA गाइड्स द लिंकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन और राइबोसोम्स, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ओवर द राइबोसोम्स। ईच राइबोसोम हैज़ टू अनइक्वल पार्ट्स, small and large subunit, ठीक है। The largest subunit of ribosome has a groove for pushing out the newly formed polypeptide and protecting the same from cellular enzymes, ठीक है। The smaller subunit fits over the larger one like a cap but leaves a tunnel for mRNA. The two subunits come together only at the time of protein formation. The phenomenon is called association, ठीक है। Magnesium ion is essential for it, ठीक है। Ribosomes usually form helical groups during active protein synthesis known as polyribosomes or polysomes. These are there are three reactive sites in a ribosome, that is P site, which is peptidyl transfer or donor site, then A site which is amino acyl or acceptor site, and E or exit site, ठीक है। ये तीन साइट होती हैं रिएक्टिव साइट्स राइबोसोम में, ठीक है। देन पी साइट ये वाली, ठीक है ना, पेप्टाइडिल ट्रांसफर आर डोनर साइट, ठीक है। पी साइट इज जनरली कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। ए साइट एंड ई साइट जो एक्सिट वाली, ए साइट एंड ई साइट आर लार्जली कन्फाइंड टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज it is a messenger RNA, means mRNA, which brings coded information from DNA and takes part in its translation by bringing amino acids in a particular sequence during the synthesis of polypeptides. The codons of mRNA are recognized by anticodons of tRNA. The synthesis of polypeptide can be considered in terms of initiation, elongation and termination stages, ठीक है। These fundamental processes have additional stages, that is activation of amino acids before their incorporation into polypeptide and post translational processing of completed polypeptide, ठीक है।
हाँ, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो, हाँ, कि दीज फंडामेंटल प्रोसेसेस हैव एडिशनल स्टेजेस, ठीक है, उनमें आ गया एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बिफोर देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड द पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड. Both these processes play important roles in ensuring the proper function of the protein product. ठीक है. For the synthesis of a polypeptide, the carboxyl group of each amino acid must be activated to facilitate formation of a peptide bond. Amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA or aminoacylation of tRNA. To be more specific, the translation of mRNA begins with the formation of initiation complex. Initiation factors are designed as IFs in IF means initiation factors, ठीक है ना. Initiation factors are designated as IFs in prokaryotes and EIFs in eukaryotes, ठीक है. ये क्या है? initiation factors हैं. प्रोकैरियोट्स में बोलेंगे IFs और यूकैरियोट्स में EIFs, ठीक है ना. इलांगेशन रिक्वायर्स इनिशिएशन कम्प्लेक्स, अमाइनो एसिड टीआरएनएस, इलांगेशन फैक्टर्स एंड जीटीपी. ये चीज़ें चाहिए इलांगेशन के लिए. ड्यूरिंग इलांगेशन स्टेज, complex is composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन, ठीक है. टर्मिनेशन, ठीक है ना. टर्मिनेशन इज सिग्नल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ 3 टर्मिनेशन कोडॉन्स इन द mRNAs, दैट इज UA, UAA, UAG एंड UGA, युगा, ठीक है ना. हाँ, इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनल कोडॉन अमाइनो एसिड, ठीक है, फाइनल कोडेड अमाइनो एसिड के बाद, ठीक है, टर्मिनेशन कोडॉन से. These 3 factors RF1, RF2 and RF3 contribute in release of free polypeptide and the last tRNA now uncharged from the ribosomes, ठीक है. ये 3 रिलीज फैक्टर्स हैं. RF1, RF मीन्स रिलीज फैक्टर, RF1, RF2 एंड RF3 जो हैं ये फ्री पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करने में आसानी करते हैं, और लास्ट tRNA को. अब अनचार्जिंग ऑफ tRNA हो गया, ठीक है, राइबोसोम से. तो ये ट्रांसलेशन हमारा हो गया फिनिश. अब हम हाँ, सेंट्रल डागमा क्या होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं. सेंट्रल डागमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डागमा किसको बोलते हैं, ठीक है. सेंट्रल डागमा, ठीक है. द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल अकर्स नॉर्मली थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. दिस इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स. दीज आर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है. तो मेन चीज़ है सेंट्रल डागमा में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब mRNA के बनने से जब तक प्रोटीन फ्री पॉलीपेप्टाइड बनती है, इस पूरे को सेंट्रल डागमा बोलते हैं, ठीक है ना. तो द DNA codes for the production of messenger RNA mRNA during transcription. Messenger RNA carries coded information to ribosomes. The ribosomes read this information and use it for protein synthesis. This process is called translation. FHC Crick described this unidirectional flow of information in 1958 as the central dogma of molecular biology. तो जो FHC क्रिक साइंटिस्ट था ना इस नाम का, उसने ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है ना, जो DNA के बाद mRNA बना, वहाँ से राइबोसोम में गया तो ट्रांसलेशन हुई, ठीक है ना. तो 1958 में इस क्रिक ने बोला कि दिस प्रोसेस इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है. Many tumor viruses contain RNA as genetic material and replicate by first synthesizing a complementary DNA. This process is called a reverse transcription. क्योंकि बहुत सारे ट्यूमर वायरसेस में RNA होता है, वो जेनेटिक मटेरियल सिक्रेट हाँ, जेनेटिक मटेरियल उनमें होता है RNA, ठीक है ना, और वो रेप्लिकेट करते हैं. पहले एक कम्प्लीमेंट्री DNA बनाते हैं, तो उसके बाद फिर ऐसे बनते हैं mRNA. तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है ना. इट इज़ कैरिड आउट बाय दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कैरिड आउट बाय RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है. RNA डिपेंडेंट मतलब कि RNA से कैसे DNA बनाया फिर RNA, ठीक है. RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको बोलेंगे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट.
This inverse flow of information was reported in retroviruses by Tamin and Baltimore in 1970 and was called as central dogma reverse. तो ये जो इन्वर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये रेट्रोवायरस में पाया टैमिन और बाल्टीमोर ने 1970 में, और इसको बोला गया सेंट्रल डॉगमा रिवर्स। ठीक है, तो जो मतलब कि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, ठीक है, नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा वो ये रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, ये आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको बाद में सेंट्रल डॉगमा रिवर्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले होता है ये आरएनए से उल्टा बनाते हैं डीएनए, फिर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए, देन ये ऐसे प्रोटीन, ठीक है ना, रिवर्स में चलते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कैसे होती है, जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन कैसे होती है। ना नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का, ठीक है, कि जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होती है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट सच एज अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। हाँ, इट कैन बी रेगुलेटेड रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। हाँ, there are two types of gene regulation, positive and negative gene regulation, ठीक है। in negative gene regulation the gene continues to express their effect till their activity is suppressed. this type of gene regulation is also called repressible regulation, ठीक है, ये नेगेटिव वाली रिप्रेसिबल रेगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। द रिप्रेशन इज ड्यू टू अ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स का प्रोडक्ट की वजह से होती है। देन उसके बाद पॉजिटिव जीन रेगुलेशन देखें तो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन इज द वन इन विच द जीन remain नॉन एक्सप्रेस्ड अनलेस दे आर इंड्यूस्ड टू डू इट, ठीक है ना। इट इज़ देयरफॉर दिस पॉजिटिव जीन रेगुलेशन इज कॉल्ड इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन, ठीक है। ये पहले नॉन सप्रेस्ड रहती है जब तक इसको इंड्यूस ना करा जाए, ये पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, इसको इंड्यूसिबल भी कहते हैं, मतलब इंड्यूस करना पड़ता है। हाँ, जीन रेगुलेशन इज एग्जर्टेड एट 4 लेवल्स, ठीक है। पहला आ गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल, व्हेन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म, वहाँ पे भी होते हैं। देन प्रोसेसिंग लेवल, व्हेन स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनल एडिशंस आर मेड, ठीक है, यस। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एट अ स्टेज व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA आउट ऑफ न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म अकर्स, यहाँ पे भी रेगुलेशन। देन ट्रांसलेशनल लेवल पे होती है, ठीक है, ये 4 लेवल पे रेगुलेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Jacob and Manaud in 1961 from their study in bacterial genetics proposed that genetic material has a number of functional units called operons, ठीक है। An operon consists of minimum 4 types of genes, that is regulator, operator, promoter and structure, ठीक है। An operon consists of minimum 4 types of genes, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ओपरान, एक ओपरान में ये होती है, ठीक है। तो ओपरान क्या हो गया, हाँ, जेनेटिक मटेरियल हैज़ अ नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड ओपरान, एक फंक्शनल यूनिट को बोल देंगे ओपरान। ओपरान के ये पार्ट हैं, रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स। हाँ, तो अब हम देखते हैं रेगुलेटर जीन, ठीक है। हाँ, रेगुलेटर जीन फॉर्म्स अ बायोकेमिकल फॉर सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन, ठीक है। हाँ, रेगुलेटर जीन जो है ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी सप्रेस करती है। देन ऑपरेटर जीन रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन, इट अलाउज द फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरान व्हेन इट इज नॉट कवर्ड बाय द बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर जीन, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ ऑपरान इज स्टॉप्ड व्हेन ऑपरेटर जीन इज कवर्ड, ठीक है। हाँ, promoter gene provides point of attachment to RNA polymerase required for transcription of structural genes, ठीक है, promoter gene करती है। then structural genes transcribes mRNA for polypeptide synthesis, ठीक है, structural genes transcribes mRNA for polypeptide synthesis। next is lac operon of Escherichia coli means E. coli, ठीक है। lac operon of E. coli is an inducible operon system which was discovered by Jacob and Manaud in 1961,
ठीक है। लैक ओपरान हैज़ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A, ठीक है। In the induced operon, the structural genes transcribe a polycystonic mRNA which produces 3 enzymes, ठीक है। These are beta galactosidase, then galactoside permease and galactoside transacetylase, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब फ्रॉम Z जीन, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्रॉम Z जीन ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू फॉर्म ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। देन galactose permease which is from Y gene is required for the entry of lactose into the bacterium, ठीक है। then galactoside transacetylase which is from A region can transfer acetyl group from acetyl CoA to beta galactoside. The substance whose addition induces the synthesis of enzyme is called inducer. Inducer is a chemical which attaches to repressor and changes the conformation of its operator binding site so that no more remains attached to operator, ठीक है। The repressor of lac operon is the tetrameric protein, ठीक है ना। हाँ, it is made up of 4 subunits each having molecular weight of 40,000, ठीक है। If lactose is added, the repressor is rendered inactive so that it cannot remain bound to operator gene and synthesis of mRNA takes place, ठीक है। Transcription is under negative control when lac repressor is inactivated by inducer, ठीक है। तो ये मतलब कि लैक ओपरान के बारे में देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ठीक है ना। HGP और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज एन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट बाय 6 कंट्रीज एडमिनिस्टर्ड जॉइंटली बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA, ठीक है। It is HGP is an undertaking project by 6 countries to acquire complete knowledge of the organization, structure and function of the human genome, ठीक है। हाँ, it is called International Human Genome Sequencing Consortium and is aimed at finding out all the genes in each of the human chromosomes and ultimately of the other organisms, determining their function and hopefully understanding how they together form the complete organism, ठीक है। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक अंडरटेकिंग है, 6 कंट्री कर रही है, इसको जॉइंटली एडमिनिस्टर कर रही है जो USA की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वो कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। DNA fingerprinting is a technique for identifying repeated sequences in the human genome that produce a pattern of bands unique for every individual. Satellite DNA are part of repetitive DNA which has long repetitive sequences in tandem that forms a separate fraction on density gradient configuration, ठीक है। Satellite DNA shows very high degree of polymorphism. It is called as variable number of tandem repeats VNTR, ठीक है। Polymorphism which means variation at genetic level. This polymorphism means variation at genetic level arises due to mutations, ठीक है। हाँ, in DNA polymorphism more than one variant or allele at a locus occurs in human population with the frequency greater than 0.01. DNA fingerprints can be prepared from extremely minute amounts of blood, semen, hair bulb or any other cells of the body. Major steps are क्या हैं DNA fingerprinting के? नंबर 1, DNA is extracted from the cells. DNA can be amplified by PCR or polymerase chain reaction, ठीक है। then DNA is cut into fragments with restriction enzymes. Then chopped DNA fragments are passed through electrophoresis. The separated fragments can be visualized by staining them with a dye, ठीक है। electrophoresis के बाद
डाई से स्टेन करेंगे। देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज देन स्प्लिट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूजिंग अल्कलाइन केमिकल्स, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज देन स्प्लिट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूजिंग अल्कलाइन केमिकल्स, ठीक है। देन separated DNA sequences are transferred from gel onto a nitrocellulose or nylon membrane, ठीक है। दिस इज कॉल्ड southern blotting, ठीक है। नेक्स्ट इज the nylon sheet is then immersed in a bath where probes or markers means radioactive synthetic DNA segments of known sequences are added. The probe hybridizes with VNTR, ठीक है। VNTR हो गया वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats. Then X-ray film is exposed to the nylon sheet, gives dark bands at the probe site. Thus hybridized fragments are detected by autoradiography, ठीक है। ये सदर्न ब्लॉटिंग हम जो है डिटेल में नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सदर्न ब्लॉटिंग कैसे कैसे होती है, ठीक है ना। हाँ, ये स्टेजेस हैं इसके। हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे अभी आप पास करके इसमें भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सांगर्स मेथड, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सांगर्स मेथड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रू और बायोलॉजिकल फादर क्रिमिनल एंड इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सांगर मेथड का डीएनए सीक्वेंसिंग है, ये भी हम जो है इसके बाद वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यार थोड़ा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, आप पास करके देख सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड हम अलग वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। DNA sequences by Sanger's method. So thank you very much. God bless you.